Hello everyone. Are you guys able to hear me? Welcome, welcome, welcome. This is a mega quiz for people appearing for CAT. Hey everyone. All right. So what we are going to do in today's session is we're going to see some interesting questions from Quant that will help you gain that confidence that you probably have lost. But I'm hoping you haven't, but if you have lost, yeah. Welcome everyone. My name is Amit Surana. I am an educator here at Unacademy with over 7 years of experience training on quantitative aptitude, and I've trained over 2.5 lakh students so far. Before we move ahead, tomorrow at 4 p.m. we have a 40-minute mock test, a free mock test. This is open for everyone. The title is Conquer QA with Amit Surana, yours truly. This is going to be at 4 p.m. a 40-minute test, and we will have the discussion for that quiz at 8 p.m. the same day. That is tomorrow at 8 p.m. This is going to happen on special. Okay, this is on special. This is what we are what we will be doing tomorrow from 4 p.m. to 4:40 p.m. Yeah, I hope you guys will join this. I will share the link on Telegram. Okay, yes, chalo, let's get this started. Yeah, are you guys ready? हाँ 40 minutes खाली क्वांट का सिर्फ क्वांट, ओनली क्वांट. चलिए, are you guys ready? अच्छा, अगर if you guys are having problem with the quality of the video, please change it to 1080p. अगर आपको blur दिख रहा है, टेक्स्ट बराबर नहीं दिख रहा है, तो फटाफट 1080p कर लेना, ठीक है? Hello Sumit, hi Umang. चलिए, let's start. So what I'll do is I'll put up a question. I'll give you 3 minutes. These questions do not take 3 minutes. ये आराम से 1.5 minutes, 2 minutes में हो जाएगा. But I'm still being more generous than ever. I'm giving you 3 minutes for these questions. Go ahead, try to solve them. अगर ये questions आपने पहले कहीं देखा है, if you solve these questions, please do not answer them from memory. Try to answer them from scratch as if you've seen that question for the first time. ठीक है ना? Hello Sumit. चलिए, let's start. Here's the first question and I'm starting the timer. 3 minutes on the timer. Let's go. I bet you've seen this question before. अगर आपने देखा है ये question, please answer it from the scratch. ठीक है, रट्टा मार के memory से मत answer करो. I know बहुत बादाम खाएं. This is not the place for you to use them. ठीक है, चलिए शुरू करिए. Let's go guys, let's go. This is a question from averages जहाँ पे arithmetic mean use किया गया है. Quickly try this out. They're asking for the value of the largest number. All right, Vineet, superb. Vineet says B, 62. ठीक है. Let's try others. What about others? Umang also says 62. बहुत बढ़िया. Saif also says 62. Superb.
तो देखा, मतलब 1.5 मिनट के अंदर अंदर ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है. इवन इफ यू हैव नॉट डन दिस बिफोर, यू कैन इजीली सॉल्व दिस, है ना. इट जस्ट रिक्वायर्स यू टू चेंज द परसेप्शन, दैट्स इट. Alright, Ayushi, superb. Very good, very good. 45, last 45 seconds. Very good, Shubh. Superb, superb. 30 seconds left, guys. Others? कोशिश करो, आराम से कोशिश करो, कोई रश नहीं है. No rush, no hurry. They're asking for the largest number. What could possibly be the largest number is the question, है ना? So one thing that could definitely help you here is reverse engineering, but don't start applying reverse engineering right from the beginning. शुरू करते reverse engineering मत करिए, थोड़ा सा ground work करिए, थोड़ा सा do it using traditional method while starting, and when you end up with variables, जब आपके पास variables हो और अच्छे खासे equations हो, तब आप reverse engineering करेंगे तो आपका आंसर फट से आ जाएगा. Very good, Sumit, बहुत बढ़िया. 62 is the right answer, guys. Beautiful work. 62 सही आंसर है. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि देर आर 5 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, 5 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, एंड ईच ऑफ देम आर लेस देन 100. सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स कॉल देम ए, बी, सी, डी एंड ई, एंड इनका ऑर्डर भी ऐसे रखते हैं कि ई सबसे बड़ा नंबर है, उसके बाद डी, सी, बी एंड ए इज द स्मॉलेस्ट, ई इज द ग्रेटेस्ट. ओके, सो व्हाट आर दे सेइंग, दीज आर डिस्टिंक्ट. Yes, and each of them are less than 100. तो ये this information we don't really need, but still okay. So it's clear कि अगर हमें वो greatest चाहिए, if we want that number to be largest, it has to be a 2-digit number, है ना. Now what are they saying? कि look at the largest average, 60.5. When will the average of two numbers be largest? जब वो numbers भी सबसे ज़्यादा हो, है ना. तो can I say that the two large numbers, D and E, yes, two most large numbers, largest numbers, उनका जो एवरेज है वो 60.5 है. सो कैन आई से D प्लस E बाई 2, इसका एवरेज इज 60.5. सो वी हैव गॉट वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट D प्लस E इज व्हाट, 121, है ना. D प्लस E इज 121. नाउ एट दिस स्टेज अगर अपन रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, लेट्स से, सो इफ आई टेक 60, इफ आई से A इज 60, सॉरी E इज 60, तो क्या हो जाएगा, इफ E इज 60 then D will become 61. मतलब D E से बड़ा हो रहा है, so 60 is not possible. Now since they want the number to be largest, let's try with 64. What happens? Yes, so if E is 64, what will happen? If E is 64, then D will become 57. Yes, so if E is 64, D is 57. Let's check with the next one. Now what are they saying? Now अगर largest two numbers का जो average है, largest two numbers का average 60.5 है, तो 60 किन numbers का average होगा? 60 will be the average of which two numbers? Largest and the next smallest, है ना, largest and the next smallest. Yes, 59 किसका average होगा? These two numbers, correct? Second largest numbers, D और E का, C और D का जो average होगा वो 59 होना चाहिए. Say yes if you agree with this. है ना, C और D का जो एवरेज होगा that should probably be 59. So if we try that out, what will happen? C plus D by 2 अगर 59 है तो we will get C plus D का वैल्यू क्या है, 57 is equal to 59 का डबल 118. So we will get C to be greater than 57. हाँ या ना, we are getting C as 61. So अगर C 61 है तो बवाल मच जाएगा भाई. C 61 है, D 57 है और E अपना 64 है. So this doesn't make sense. So the only option left is what? सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है जो कि 62 है. So let's try with 62. What happens? If E is 62, then D becomes what? अगर E 62 है तो D क्या हो जाएगा? 121 minus 62, 59. So now we are getting D as 59. If we put this here, C plus D का average क्या है? Sorry, no, not 121. Yeah, D comes up to be 59. क्या? Yeah, makes sense ना?
ठीक है, अगर D 59 है एंड वी आर गेटिंग टू नंबर्स का एवरेज टू बी 59, दिस समथिंग फिशी. Okay, something seems to be wrong. So in that case, then 59 will not be the average of C and D. क्योंकि अगर D 59 है और C और D का एवरेज भी 59 है तो 59 C और D दोनों 59 हो जाएंगे, which is not possible, right? So either which ways, if we try with 62, D 59 आ रहा है, ये तो clear है, confirmed है. Yes, and what do you know? C plus E का एवरेज 60 होगा. So C plus E का एवरेज क्या होगा? 60. That means C plus 62 is 120. तो आपका C का वैल्यू क्या आ रहा है? 58. 62, 59, 58. Yes, that is how you are getting 58.5 as the average of D and E. है ना? D और E का एवरेज शुड बी 60.5 ना? क्या? अच्छा, ये 62 है. सॉरी, माई बैड, दिस इज 62. मैं 100 की जगह पे 62 लिख रहा था. ये 59 है तो ये 58 होगा. C और D का एवरेज 58.5. अभी क्या बोल रहे हैं कि 60 शुड बी किसी नंबर का एवरेज, तो C और B का मिला के में भी 50 होगा. यस, नो, C और E का 60 है. यस, C प्लस E 60, दिस मेक सेंस. C और D का 58.5, दैट इज डन. We need one number to have the average of 59. Yes, 59, we can get it with B, I guess. Yes, B और E का मिला के 59 हो सकता है. तो what will happen? 59 मतलब ये अगर 62 है, 3 ज़्यादा, ये 3 कम होगा, 56. Make sense? तो अभी देखो 56 और 58 का एवरेज 57, डन. 59 डन. 60 डन. 60.5 डन, है ना? 58 एवरेज इज ऑल्सो डन. और क्या बचता है? 57.5. दिस विल बी 56 और 59 का. Yes, so ultimately we are getting 62 पे everything sorted. So what did we do? We didn't end up making equations at all. अपन ने average नहीं, equations नहीं बनाया. We did not deal with equations. We did not deal with too many variables. Reverse engineering किया और check किया कि बाकी सब कुछ sort हो रहा है नहीं हो रहा. Is that clear? ठीक है. I hope that's clear, है ना? चलिए, बहुत बढ़िया. इसको यू कैन ऑल्सो, वॉट यू कैन डू इज टू, इफ यू डोंट वांट टू ट्राई विद रिवर्स इंजीनियरिंग, फिर आप क्या करोगे? सारे नंबर्स का एवरेज ले लो, ऑल द नंबर्स का एवरेज, ऑल ऑफ दीज नंबर्स. यस, सो व्हाट विल हैपन? अगर ये a प्लस बी है, ये b प्लस a है, a प्लस बी, सो ईच नंबर विल कम 5 टाइम्स, है ना? a यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है. a will basically be added with 4 other numbers, so every number will come 4 times. a plus b plus c plus d plus e. यस, तो इसका आप इनका एवरेजेस को ऐड कर लो एंड मल्टीप्लाइड विद 2, यू विल गेट दैट सम. यस, दे शुड कम अप टू 289, 578 का डबल, करेक्ट? 578 का डबल आएगा. सो यू विल बेसिकली गेट a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का जो सम होगा, दैट विल कम अप टू 289. यहाँ पे आप e का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, d का कर सकते हो, बाकी के वैल्यूज आ जाएंगे आपको. क्लियर? This is just an alternative. This will take some time. This is a little time consuming. The fastest way to solve this would be to go reverse engineering on this question. Done? सही है? चलो, beautiful. Let's move on to the second question. Try out the second question. 3 minutes on the timer. Quick. Try this question, guys. You can save a lot of time. You can save a lot of time by assuming. Assumption करोगे यहाँ पे, you will save up a lot of time. काफी टाइम बच जाएगा आपका, है ना? चलिए गाइस, शुरू करिए.
तो ये क्वेश्चन जो है यू कैन एक्चुअली आंसर डायरेक्टली फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ, डायरेक्टली आप क्वेश्चन से ही कर सकते हो, बट ट्राई करो। आंसर्स एनीवन? One minute left. Aditya says A, second hour, okay. तो यहाँ पे कॉमन मिसकंसेप्शन ये है कि ये सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज है। यस, दिस इज नॉट सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज, नो, दिस इज नॉट सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज गाइस। सक्सेसिवली इंक्रीज या सक्सेसिवली डिक्रीज नहीं हो रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग विद अ कांस्टेंट, कांस्टेंट से इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। यस, Shubh is saying C. Sumit is also saying C. Rasika and Arpit are saying A. Kunal is saying B. ठीक है। Hello Prachi. Vineet says D. Says fourth hour. Okay. Actually, D, fourth hour is the right answer, guys. Unless and until the question directly suggests, please keep this in mind, ठीक है। Unless and until the question directly suggests कि सक्सेसिवली चेंज हो रहा है, फ्रॉम फर्स्ट आवर टू सेकेंड आवर, फ्रॉम सेकेंड आवर टू थर्ड आवर नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि फर्स्ट आवर में लेट्स से अ मैन मेक 60 आर्टिकल्स, यस, सेकेंड आवर में क्या हो रहा है, उसका एफिशिएंसी जो है डिक्रीजेस बाय 25%। नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक घंटे का है, फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर, थर्ड आवर, एक एक घंटा, मतलब कैन आई से टाइम इज कांस्टेंट। So when time is constant, we know that efficiency and work are directly proportional, correct? तो work और efficiency directly proportional है, अगर efficiency 25% गिरेगा तो work भी 25% गिर जाएगा, yes? तो 60 से 25%, मतलब 60 से 15 निकाला, कितना हो जाएगा, 45 articles, yes? Again, what are they saying? In third hour, increases by 40%, तो 60 पे 40% increase हो रहा है, please understand that. 60 पे जो है वो 40% इंक्रीज हो रहा है, नॉट साइमल्टेनियसली, प्लीज 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 अंडरस्टैंड दैट, ओके। इज दैट क्लियर गाइस? ओके ना? तो क्या हो रहा है अभी थर्ड आवर में, क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस बाय 40% इन द थर्ड आवर, तो 60 पे 40% इंक्रीज, मतलब कितना, 84। फोर्थ आवर में क्या हो रहा है, डिक्रीजेस बाय 33%, तो 60 का 33% मतलब 1/3 20 गया, यहां पे कितना, 40 आर्टिकल्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? फिफ्थ आवर में क्या हो रहा है, एंड इंक्रीजेस बाय 50%, तो 60 पे 50% इंक्रीज, 60 आर्टिकल्स पे 50% इंक्रीज, दैट मीन्स 30 इंक्रीज 90 आर्टिकल्स। आर यू फीलिंग दिस गाइस? तो हमसे क्या पूछा गया, व्हाट इज आस्क्ड ऑफ अस, कि सबसे कम कहां पे होगा, yes, where will be the least efficiency, सबसे कम efficiency कहाँ पे, when would be the number of articles produced per hour be minimum कहाँ पे, fourth hour पे, कितना, 40 articles, yes, so our answer is D, fourth hour 40 articles, ठीक है। We don't really have to go for successive, successive से भी सही आंसर आ रहा है, अंडरस्टैंड, सक्सेसिव से भी सही आंसर आ रहा है, बट देन दिस इज द राइट वे ऑफ डूइंग इट। सक्सेसिव अनलेस एंड अंटिल वो बोले कि कंपेयर टू प्रीवियस आवर, हाँ मैं आई हैव ट्राइड इट, यस। सक्सेसिव से भी अगर अपन सोचेंगे, even from successive, if we think, you see decrease here in the fourth hour is 33% after an increase of 40%,
which definitely is less than 25% का decrease. Yes, so that is there, but you don't really have to get into all of that. ठीक है, unless and until they directly tell you, कि वो successive है compared to previous year, you don't have to do that. ठीक है, clear है? Yes, correct Vineet. Yeah, चलो, beautiful. Hello Arpit, Trap King. Didn't really want to get that title, but okay, I accept it. If you are preparing for CAT 2022, अगर आप में से कोई 22 के लिए प्रिपेयर कर रहा है या फिर अगर आप CMAT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यू कैन एनरोल इनटू एनी ऑफ दीज बैचेस. ये 24 को कल चालू हो रहे हैं. To become a part of this, you can take a plus or an iconic subscription using my code Surana Life. ठीक है, here's the next question. This one is from mixtures and allegations. The question seems extremely long to read. आराम से पढ़ के करना. If you've solved this before, अगर ये आपने पहले किया है तो प्लीज मेमोरी से मत आंसर करना. ओके, चलिए ट्राई करिए क्विकली. एग्जैक्टली प्राची, सुराना लाइफ ओपी. टॉपिक नहीं बताएं, चलो ठीक है. टाइम स्टोन यूज किया, आई ऑफ आगोमोटो यूज किया, ऐसे किया, वो पीछे आ गया. नहीं बताया. डोरमामू नहीं बताया आपको. ठीक है, अर्पित सेज बी. हाउ अबाउट अदर्स? अच्छा सॉरी, एक आंसर चॉइस जो है वो चेंज करना है. दिस इज नॉट 12, दिस इज 18. ये 12 नहीं है, ये 18 है. सॉरी, माय मिस्टेक. ट्राई करो अभी. थैंक यू सो मच प्राची. आई एम डूइंग सो मच बेटर. बहुत बढ़िया. एक्चुअली बहुत दिन, 1 महीना ऑलमोस्ट हो गया. YouTube पे आके 1 महीना हो गया. Saif and Aditya are also saying B. Okay. How about the others? Vineet says 9. 20 seconds left. This question, if you read this question carefully and understand it, आप इसको actually less than 30 seconds में कर सकते हो. Yes, especially if you use humankind's best creation so far, at least related to mathematics, allegations. यस, ये पिथागोरस को भी थोड़ा सा पीछे छोड़ दे भाई. तू रहन दे, तू हाइपोटेन्यूज नापते रहे, मैं एलिगेशन करके निकल रहा. प्रिंस इज 18. वेरी गुड प्रिंस. अर्पित, वो लैक ऑफ टाइम के कारण, अर्पित लैक ऑफ टाइम के कारण यहाँ पे आई एम फ्रॉम चेन्नई, ये मैं बोलते रहता हूँ, एरोनॉटिकल इंजीनियर फ्रॉम चेन्नई. तो एरोनॉटिकल इंजीनियर बेचारा बारिश में फंस गया. पानी नहीं, बिजली नहीं, इतना बारिश आ रहा है पर भी पानी नहीं. आयरनी देखो, सो मच वाटर बट नो वाटर. एनीवन एल्स? लेखना, विनीत आर सेइंग 9. एवरीवन एल्स इज सेइंग 9. वेरी गुड. हाय साहिल. Thank you so much Sahil for that offline support. welcome buddy for your first live session.
यस सो ओके सो लेट्स गो थ्रू दिस क्वेश्चन फर्स्ट. ठीक है, आराम से गो थ्रू करते हैं. क्या बोल रहा है? द टॉडी मेकर प्रिपेयर्ड 27 लीटर्स ऑफ व्हाट? 12% अल्कोहल. तो उसने क्या बनाया? 12% अल्कोहल वाला एक सोल्यूशन बनाया. तो इसका क्या मतलब है? अगर 100 लीटर्स है उसमें से 12 लीटर्स अल्कोहल है और बाकी का 88 लीटर्स वाटर है. दैट्स द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट. ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि ही फाइंड्स आउट दैट द कस्टमर हैड आस्क्ड फॉर अ 21% अल्कोहल सोल्यूशन. मतलब जो उसके पास है, what he has currently is a 12% alcohol solution, but what he wants is a 21% alcohol solution. Yes. Now what are they saying? To prepare this, he wants toddy maker to replace a portion. थोड़ा सा 12% का थोड़ा सा निकाल के 39% ऐड करना है बेसिकली उसको, है ना. So 39% alcohol solution वो ऐड कर रहा. कितना quantity is what we have to find out. So what will we do here? Alligate. Let's alligate this. What will we get? 39 minus 21 is 18. 21 minus 12 is 9. 18 is to 9 parts. Yes. Now what do we know? कि at the end of the day जितना भी add किया, जितना भी remove किया, जो भी किया, at the end of the day उसके पास कितना है? 27 liters है. Correct? Yes. And if you notice, luckily here what do you have? 18 plus 9, 27 liters. तो यहाँ पे perfectly 27 liters आ रहा है. What does this mean? This means that 18 liters of 12% alcohol था उसके पास and 9 liters of 39% alcohol था उसके पास. करेक्ट? और उसने उसको मिक्स किया. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इट्स नॉट आस्किंग कि कितना 39% अल्कोहल है. इसने क्या पूछ रहे हैं कि 12% अल्कोहल कितना रिप्लेस किया, मतलब पहले रिमूव किया, उसको फेंका और उसमें 39. फेंका तो नहीं होगा, ऑब्वियसली गटक गया होगा, बट जो भी अपने लिए फेंक दिया. ठीक है, तो 9 लीटर्स ऑफ 39% अल्कोहल उसने ऐड किया. तो कॉन्सेप्ट क्या? बेसिक कॉन्सेप्ट के 27 लीटर्स में से अगर 18 लीटर्स 12% अल्कोहल है तो उसने 9 लीटर्स रिमूव किया था. यस. सो व्हाट इज आवर आंसर? 9 लीटर्स रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विथ व्हाट? 39% अल्कोहल, है ना. सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस एक एलिगेशन, सिंगल स्टेप एंड यू हैव योर आंसर. नो नीड टू अस्यूम. कुछ अस्यूम करने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐड सबट्रैक्ट कुछ करने की जरूरत नहीं. सिंपल एलिगेशंस, दैट्स इट. सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस इज कीप योर आई ऑन व्हाट इज रिक्वायर्ड. ठीक है, कीप योर आई ऑन व्हाट इज रिक्वायर्ड. ये है अपने पास, दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू. सो ये अपना बेस लिक्विड हो गया. This is what we are using for replacement and this is what our effective solution should look like. इन्हें एलिगेट करो. सिंपल है ना. गॉट इट? हाँ, इसीलिए मैंने 18 लगाया. प्रिंस गिर भी गए थे. प्रिंस बैड बॉय. 18 लीटर्स इज 12% अल्कोहल एग्जिस्टिंग इन द कंटेनर. ऑलरेडी कंटेनर में वो है, अपन ने क्या रिमूव किया वो पूछा है. ठीक है, कूल. ट्रैप ओपी. हाँ सैफ, वो मैं रियलाइज नहीं किया था. 12 के बदले पहले 18 लगा देना चाहिए था मेरे को. चलो अगला क्वेश्चन, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन. विनीत, अब की बार मैं नहीं बोलूंगा कि ये भी मिक्सचर्स एंड एलिगेशन से है. आई लेट यू फाइंड आउट कि ये मिक्सचर से एलिगेशन से है या नहीं है. ठीक है, क्वेश्चन के बीटीएस. अरे कुछ बीटीएस नहीं है भाई, पूरा लाइव बीटी हो रखा है. कोई बीटीएस नहीं चल रहा इधर. थैंक यू सो मच अर्पित. आई रियली वांटेड टू गेट थ्रू विद दैट. आई रियली वांटेड कि अपना बैक बेंचर्स बैच जो है आज तक में ख़त्म होता और मस्त प्रैक्टिस करते, शान से बैक बेंचर्स बोलते. बट डू नॉट वरी, इवन इफ यू अटेंडेड वन सेशन, अगर आपने एक सेशन भी अटेंड किया है तो यू आर अ ट्रू बैक बेंचर. ठीक है, बस वॉक अराउंड विथ प्राइड. बट किसी को बोलना मत, बट वॉक अराउंड विथ प्राइड दो. हाई स्टार, थैंक यू सो मच बडी. अरे वो दिन दूर नहीं है विनीत. नहीं बहुत दूर है भाई. अभी तो अनअकैडमी के क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, धीरे धीरे जाएंगे, डोंट वरी. सुपर्ब स्टार, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया. आई होप योर प्रिपरेशंस आर गोइंग एक्सट्रीमली वेल. कोई हर्डल्स, कोई दिक्कत नहीं आ रहे, है ना.
ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस में है ना, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा फालतू इंफॉर्मेशन रहता है। यस, ये जो फालतू इंफॉर्मेशन है उन्हें पढ़िए, बट अवॉइड इंक्लूडिंग देम इन द क्वेश्चन। पढ़िए, डेफिनेटली पढ़िए, बट अवॉइड इंक्लूडिंग देम इन द क्वेश्चन, ठीक है। सर घूम रहा है, ये तो बहुत गलत हो रहा है विनीत आपके साथ। सैफ सेज करीना, नहीं सॉरी, सैफ क्या बोल रहे हैं, डी 6 टाइम्स। मैं सोचा सैफ बोलेगा वाओ बेबो, बट सैफ हैज डिफरेंट प्रायोरिटीज। सैफ ने आंसर कर लिया, प्रिंस ने आंसर कर दिया, बहुत बढ़िया। 10 सेकेंड्स गाइस। जय ने भी आंसर कर दिया, जय को भी आंसर 6 आ रहा है, बहुत बढ़िया, ब्यूटी। चलो सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं ये कंटेनर क्या क्या दिक्कत है ना। कंटेनर का मेजर प्रॉब्लम क्या है भाई, पहले उसको सॉल्व करते हैं ताकि उसको अपन रास्ते से निकाल सके। तो ये क्या बोल रहे हैं कि 90% स्ट्रेंथ का एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है ना, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है जिसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है 90%। ओके, इज प्रिपेयर्ड एंड स्टोर्ड इन 150 लीटर्स कैपेसिटी का कंटेनर। 150 लीटर्स का सॉल्वेंट है, नहीं बोल रहे, प्लीज अंडरस्टैंड क्या बोल रहे हैं, लैंग्वेज बहुत ज्यादा जरूरी कि भाई ये कंटेनर जो है वो 150 लीटर्स का है, इसमें सॉल्वेंट कितना है ये अपन छुपा छुपा के रखेंगे। ये मतलब अगले नेक्स्ट सेंटेंस में बोला है, द कंटेनर इज फिल्ड टू 80% ऑफ इट्स कैपेसिटी। मतलब कितना फिल किया है, 150 का 80%। हाउ मेनी लीटर्स इज इट, 150 का 80%, 120 लीटर्स, राइट। तो 120 लीटर्स इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट भर के रखा है। इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट 90% स्ट्रेंथ का कितना, 120 लीटर्स। यस, तो बाकी का जो 30 लीटर्स है ऊपर का जो ये 30 लीटर्स है वो एम्प्टी है, हवा भरा है और कुछ नहीं, लेस के पैकेट की तरह। ओनली डिफरेंसेस उसमें 80% हवा रहता है, 20% चिप्स रहता है ना। Anyway, now they're saying the container is filled to 80% of its capacity, is required to decrease the concentration of the solvent less than 60%. तो हमें क्या करना है, इस सॉल्वेंट का जो इसका ये पूरा 150 लीटर्स का जो स्ट्रेंथ है उसको लेस देन 60 बनाना है। तो अगर 60 है, लेट्स से इफ इट इज 60, यस, अगर मेरा स्ट्रेंथ नहीं, मतलब इसका सॉल्वेंट का स्ट्रेंथ 60% ही बनाना है, yes, then they are asking how much water should be added, how many times the water should be added, है ना। तो पहले ये पता करते हैं कि कितना लीटर पानी डाला है, फिर ये पता कर लेंगे कि कितनी बार डाला है। यस, सो इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट 90%, अपन को 60% चाहिए। अब अपन यहाँ पे क्या ऐड कर रहे हैं, वी आर एडिंग ओनली वाटर। तो वाटर में इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा, वाटर में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन 100% है, पानी में तो सिर्फ पानी, अब ये पानी है, इसमें सिर्फ पानी है ना, झूठ बोल रहा हूँ, कुछ और भी है, नहीं पानी है। तो पानी में सिर्फ पानी है, इसमें इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट जो मेन केमिकल है वो कितना रहेगा, 0%। बस मिल गया हमें, वी जस्ट वांट अ रीजन टू एलिगेट एंड वी हैव इट। करिए एलिगेट, इसको क्या मिलेगा, 90 - 60 इज 30, 60 - 0 इज 60। यस, so basically what they're saying कि ये जो है this is filled up to what 120 लीटर्स है ना। ये जो 90% है, 90% वाला कितना है, 120 लीटर्स है। तो अगर 90% वाला 120 है, so this will be 120, this will be how much, इसको अपन ने डबल किया, 120 लीटर्स हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 60 लीटर्स। मेक सेंस। सो वी बेसिकली वांट 60 लीटर्स ऑफ वाटर इन इट। हमें क्या चाहिए, वी बेसिकली वांट 60 लीटर्स ऑफ वाटर इन दिस। यस, तो अभी एक बार में दे आर सेइंग वन टाइम रिप्लेसमेंट में आप सिर्फ 10 लीटर ऐड कर सकते हो।
once at a given time you can only add 10 liters of water. तो अगर मेरे को 60 liters of water लाना है इसमें, तो कितनी बार करूंगा मैं? 6 times. This is our answer. Got it? सिंपल लगा ये क्वेश्चन? Did you guys find this interesting? As well as solution इसका सिंपल लगा क्या? क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, चलो वो अलग बात है, बट इसका सोल्यूशन आपको सिंपल लगा? ओके, बहुत बढ़िया गाइस, सुपर. लास्ट मिनट एडवाइस. अच्छा सुनो, ध्यान से सुनो. आई विल गिव यू अ वेरी गुड पीस ऑफ एडवाइस. लिसन टू मी. ये बहुत लोग नहीं बोलते आपको, आई विल टेल यू, ठीक है? A lot of people don't tell you this, but I'll tell you, right? Very important last minute advice. ये जो है आपका percentile, your percentile, this will definitely boost it. Yes. First step, do not ask for advice. ठीक है? Do not ask for advice. Step number 2, do not follow any last minute advice. ठीक है? Do not follow last minute advice. समझ रहे हो? And यहाँ पे एक step 3 भी है. Step 3, strictly follow 1 and 2. ठीक है? फॉलो दीज 3 स्टेप्स. आपका परसेंटाइल देखो, 99 से अगर 98 ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना. क्या करते हो गाइस इतने? मतलब मैं सोचा मेरा क्राउड बहुत मैच्योर है, ये लास्ट मिनट एडवाइस वगैरह में नहीं घुसोगे, बट ये तो आप पूछ रहे हो. ये तो बहुत गलत है भाई. वेरी बैड, वेरी बैड. हाय अरशद, वनक्कम. अरे हाँ आदित्य, गाइज आज मैंने 3 बजे को एक अच्छा देखना, वो जाके सेशन देखना, इंटरेस्टिंग है. ये वाला आ गया सबको समझ में? ये वाला आ गया सबको समझ में? इजी था ना क्वेश्चन, स्पेशली विथ एलिगेशंस. तो यूज करो, घुसाओ एलिगेशंस को कहीं पर भी. इफ इट डजंट वर्क, इफ दिस डजंट वर्क, तो आपके पास अपना ट्रेडिशनल मेथड तो है ही है. रिमूवल, रिप्लेसमेंट वाला जो क्वेश्चन है, रिप्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट, वो तो है ही है. ठीक है, चलिए बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन गाइस, अगर आप अभी भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हो, आई नो बहुत लेट है, बट प्लीज अंडरस्टैंड, प्लस आपका सिर्फ कैट के लिए नहीं, इट्स नॉट ओनली फॉर कैट बट इट्स ऑल्सो फॉर अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट. इफ यू आर समवन हु इज ओनली प्लानिंग ऑन गिविंग कैट, तो भाई शेयर दे लो आप, है ना? क्योंकि कैट के साथ बैकअप एग्जाम्स दो, जैट दो, एनमैट दो, स्नैप दो, इनमें से कोई भी एग्जाम दो जो आपका कॉलेज, आपका प्रिफर्ड कॉलेज, आपका प्रिफर्ड प्रोग्राम ऑफर करता है ना? तो ओमेट अगर आप दे रहे हो तो यू कैन टेक द 6 months सब्सक्रिप्शन, जहां पे आपका नॉट जस्ट अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट, बट इसके अलावा आपका जो WAT होगा, GD होगा, PI होगा, उस पर भी आपको गाइडेंस मिलेगी. यस, सो यू कैन टेक द 6 month सब्सक्रिप्शन. 16,400 है. आप मेरा कोड यूज करोगे जो कि क्या है? सुराना 5, सुराना बी हाइव, क्या है? सुराना लाइव. यूज करो ये कोड, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा. ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे. 5वां सवाल, 50,000 रुपए मेरे को देने की. ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे. अरे उत्कर्ष, अगर 1 साल से सोच रहे तो फिर रहने दो भाई. अगर 1 साल से सोच रहे हो तो फिर तो रहने ही दो. 360 दिन तो निकल गया, आखिरी के 5 दिन लगा के क्या ही करोगे, जान दो. प्रिंस बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया. 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर आंसर, सुपर. प्रिंस इज बी 12.5%. हाउ अबाउट द अदर पीपल इन द चैट? आदित्य ऑल्सो सेज बी, बहुत बढ़िया, सुपर. प्रिंस का भी, आदित्य का भी.
अर्पित ऑल्सो सेज बी, सुपर्ब. 50% टाइम निकल गया गाइस. 50% ऑफ द टाइम इज डन. ए प्रिंस चीटिंग करता है. चीटिंग करता है प्रिंस. रे सेज बी, सैफ सेज बी, बसंत सेज बी, लेखना एंड शुभ आर ऑल्सो सेइंग बी. सुपर्ब गाइस, वेरी गुड वेरी गुड. अमेजिंग वर्क, अमेजिंग वर्क. बहुत बढ़िया. चलेगा. थोड़ा सा टाइम अगर एक्स्ट्रा लग रहा है, नो इश्यूज, डोंट वरी अबाउट टाइम. एक्यूरेसी पे ध्यान दो. टाइम झक मार के आपके पीछे भागेगा. नहीं, एक्चुअली उल्टा आप टाइम के पीछे भागोगे, बट स्टिल ठीक है. चलो अभी ये क्या बोल रहे हैं. दे आर सेइंग दैट द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड फॉर nth ईयर एंड n plus 1th ईयर इज 773 एंड 870. यहीं से हमें क्या पता चल गया कि ये सिंपल इंटरेस्ट तो नहीं है कि नहीं. इट इज क्लियर फ्रॉम हियर दैट इट इज डेफिनेटली नॉट सिंपल इंटरेस्ट. से यस इफ यू अग्री विद दैट. यस, तो ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है. इट इज क्लियर, इट इज कॉम्पाउंड इंटरेस्ट. क्योंकि इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में, लिसन टू दिस, in simple interest every year is same, है ना. every year is constant, same interest रहता हर साल. क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट बदल रहा है. what is the understanding of this? that it has to be compound interest. अब compound interest का क्या सीन है guys? so if wherever you get stuck, ऐसे कहीं पे अगर आप अटक जाओ कि बेस कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, बेस कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो सिंपल सा लॉजिक है. देखो, लेट्स स्टार्ट विथ 100 रुपीज, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना. तो नेक्स्ट ईयर क्या हो गया, 110 हो गया. नेक्स्ट ईयर आपका जो, लेट्स से दिस इज इंटरेस्ट, 1000 रुपीज अपना प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है. तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 100 रुपीज, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना, 110 रुपीज. यस, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट इन द थर्ड ईयर, 121 रुपीज. तो अगर आप नोटिस करोगे, आई डोंट नो इफ यू फिगर दिस आउट ऑलरेडी, या मैं सर ये पुराना न्यूज, पुरानी खबर दे रहे हो सर, इन दोनों का अगर परसेंटेज निकालोगे, 121 अपॉन 110 इज ऑल्सो 1.1, है ना. इसका क्या मतलब हो गया, दिस बेसिकली मीन्स कि यहां पे भी 10% का इंक्रीज हो रहा है. सो यू विल गेट योर रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन एक्चुअली बी फाउंड आउट बाय डूइंग व्हाट, finding out the ratio of the interest of n plus 1th year upon nth year. सिंपल है कि नहीं. बहुत बढ़िया. तो यहां पे क्या हो जा रहा है, we basically just have to find out the क्या बोलते हैं, रेशियो ऑफ 870.3 जो कि इंटरेस्ट ऑफ n plus 1th year है, एंड 773.6 का. यस, दिस विल गिव अस मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर. उससे अपन 1 सबट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा. से यस इफ यू अग्री विद दिस गाइस. तो 870 अपॉन 773 अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है, 870 अपॉन 773 इज कमिंग हाउ मच, 1.125. यस, व्हाट डू यू मीन बाय 1.125. इसमें से 1 जो है वो तो प्रिंसिपल है, तो बाकी इंटरेस्ट कितना, 0.125. अगर आपने 0.125 को 125% बोला है तो अपन अलग डिस्कशन करेंगे, ठीक है. कोपचे में तेरे को कोपचे में आपको बुला के अलग से डिस्कशन करेंगे. सो हाउ, व्हाट विल दिस बिकम, 12.5%, है ना. इनटू 100 करना है. यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस विथ 100 टू गेट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. सो व्हाट्स आवर रेट ऑफ इंटरेस्ट, 12.5. सिंपल डिवीजन का क्वेश्चन है. यस, सिंपल डिविजन बेस्ड क्वेश्चन, कुछ करने की जरूरत नहीं. अगर आपको डायरेक्ट चाहिए, यू कैन, व्हाट यू कैन डू इज, आप यहीं पे डिफरेंस निकाल सकते हो. फाइंड आउट द डिफरेंस हियर विच विल बी ऑलमोस्ट 100 रुपीज. अप्रोक्सीमेशन बताता हूं, देखो, आई टेल यू हाउ टू डू दिस विद अप्रोक्सीमेशन. तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, डिफरेंस इज 100 रुपीज. अपने हिसाब से प्रिंसिपल वैल्यू इज 773. यस, दिस इनटू 100 विल गिव अस आवर रेट ऑफ इंटरेस्ट. यस, तो 100 बाई ऑलमोस्ट 80 है ये, 100 बाई 800. सो व्हाट इज 100 बाई 800, 1 बाई 8 ऑलमोस्ट. सो 1 बाई 8 इंटू 100 इज व्हाट, 12.5%. खत्म. अप्रोक्सीमेशन से कर लो क्योंकि आंसर चॉइसेस काफी दूर दूर है, ठीक है. यस, करेक्ट.
हाय एसके भाई, दिसंबर से करेंगे चालू, दिसंबर 1 से करेंगे चालू, है ना। लेट्स नॉट 21 22 मिला के बीच में कचरा नहीं करते, विल स्टार्ट फ्रॉम दिसंबर, ठीक है। चलिए, परसेंटेज चेंज से भी हो जाएगा, एक ही बात है ना, सेम थिंग, परसेंटेज चेंज, ये रहा 100, ऑलमोस्ट 100 का डिफरेंस है 0.773, सेम थिंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम, अभी मैं बोलूंगा तो विनीत बुरा मान जाएंगे कि क्या सर आपने टॉपिक बोल दिया। आप आंसर बोलते हो वही बड़ी बात है, आप टॉपिक भी बोल रहे हो, गलत बात। सर आई नीड योर सजेशन, शुड आई ड्रॉप फॉर कैट एग्जाम, करंटली वर्किंग इन IT कंपनी। एसके सी नॉर्मली आई लीव दिस अप टू योर डिस्क्रेशन, कि आप अपना सजेशन खुद दो और खुद उसे फॉलो करो, बट इफ यू आस्क मी फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, सो इफ आई वेर यू, आई वुडंट ड्रॉप फ्रॉम व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। 1 साल का गैप तो मैं डेफिनेटली नहीं डालूंगा अपने प्रोफाइल में, but what I'll do is I'll split my time so that I give good amount of focus on CAT also. At the same time I don't get kicked out of my work, ठीक है ना। I should not get kicked out of my work, at the same time I should not lose focus, तो वो मैनेज करना आप देख लो, ठीक है एसके। So what you can do is, maybe if you are planning on starting from now, आपके पास 1 साल है, तो even if you can give like 3 hours 4 hours per day, not at once देने की जरूरत नहीं है, मे बी सुबह 1 घंटा, दोपहर को 1 घंटा, like that, if you can split 4 hours in a day, if you can spare, then you will have, even if you work for 3, even if you prepare for 300 days, मतलब 65 days, महीने के 2 दिन आपको छुट्टी, 2 से 3 दिन आपको छुट्टी महीने का, है ना। even then you will be able to spend 1200 hours, which is a very good amount of time to spend on कैट का प्रिपरेशन, ठीक है एसके। और आंसर्स आ गए, प्रिंस सेज बी, अर्पित सेज सी, बी सी, बाकी शुभ, लेखना, प्रतीक, सैफ, अर्पित आर सेइंग बी। कितने लोगों ने इस क्वेश्चन के लिए कैलकुलेटर यूज करा? विनीत सेज बी, आदित्य saying 1, okay, Aditya, super, 1. Shreyansh is saying B, okay. Arshad is saying A, Arshad देख रहे थे कि अरशद सर B सेलेक्ट हो गया, C सेलेक्ट हो गया, D सेलेक्ट हो गया। I read it in one of the Instagram motivational pages कि be different, stand out, unique, think out of the box, तो मैं A बोलेगा क्योंकि कोई नहीं बोला है। ओके चलो डी बी, ऑलराइट, लास्ट 20 seconds. Sandeep says B, Basant says D. Basant, if your answer is D, tell me how much. अगर ये क्वेश्चन कैट में आया तो पहले हंसना। इफ दिस क्वेश्चन कम्स इन योर कैट, यस, फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज लाफ हिस्टेरिकली, नॉट नॉर्मल लाफ, ऐसे नहीं ही ऐसे नहीं, जोर जोर से टेबल पीट पीट के हंसना ताकि आपको धक्का मार के बाहर निकाल ले, राइट, उस एक्सटेंट तक हंसना। फिर रोना कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा ठीक है, फिर रोना कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा, राइट, वो एंजाइटी में घुस जाना, ठीक है। सो सी इफ दिस क्वेश्चन कम्स इन योर कैट, व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग करने वाले हो, यू हैव 459,045, इस पे आप अपना जो भी ब्लैंक है 3, 9, 0 तीनों लगा के देख लो, then divide that by 27, see if you get an integer value. That's simply it. यही अपना क्वेश्चन बेसिकली, है ना। हंस हंस के कंप्यूटर तोड़ दोगे भाई प्रिंस आपको बार कर देंगे, बैन कर देंगे कैट एग्जाम देने के, फोटो लगा देंगे आपकी हर जगह पे कि बी अवेयर ऑफ प्रिंस में आता है, ये आ जाए तो अंदर मत आने देना भाई, प्रॉपर्टी तोड़ देता है। ओके, सो दिस इज हाउ यू वुड नॉर्मली डू इट, या 30 सेकेंड्स भी नहीं लगेगा भाई, ये कैलकुलेटर में टाइप करने के लिए आपको 10 सेकेंड लगेंगे बस, आंसर तो आ गया।
You can also do it with digital sum, yes, but understand what I'm trying to say. आप कभी भी whenever you try to solve these kind of questions, you have to be extremely careful. Yes, you have to be extremely careful, because when you're talking about divisibility of a number by 27, then that number should be divisible by 9 as well as by 3. Yes, it should be divisible by 9 and after being divisible by 9 by 3, क्योंकि 9 and 3 are what? They are factors and multiples of each other. Yes, so please be careful about that. समझ गए? So what are we going to do here? Another way of looking at it would be you first divide it by 3. पहले 3 से divide कर लो या पहले 9 से divide कर लो and then further divide it by 3. So you can do that one step, or alternatively what you can believe in is directly checking for the ये अपना divisibility. Yes, so what we'll do is first let's try and check with 9. So 9 से तो ये perfectly divisible है ना? 45, 4 plus 5 9. 9 is also divisible, 45 is also divisible. So what we'll do here, first let's divide this by 9. नहीं, first let's divide this by 3. That will make sense. So क्योंकि फिर 9 से check करोगे तो फिर you'll have to divide with 3. क्या? So 9 से कर लो पहले. So if we do it with 9, what will I get? 45 is 5 times. 9 is once. 0 is 0. This is also 0. 45 is 5 times. Correct? 51,005 आएगा. Divide this with 9. You will get 51,005. अब check करो. Now check the divisibility with 3. तो क्या करोगे? Digital sum. 5 plus 1 plus 0 plus 0 plus 5. This is how much? 11. तो 11 में I should add some number, है ना? क्या बोल रहे हैं? Add करो, number को बोल रहे हैं. So 11 में what should I add? I will add 1 to make it 12, which will become divisible by 3. Yes, but I want to make it divisible by what? 27. So 3 and then another 9. समझ में आ रहा है? So 1 पे आप पहले 3, क्योंकि 3 से divide कर रहे हो तो multiply by 3 and then divide by 9. Multiply by 9 directly. एक ही बार तो 9 से divide किया. So 1 into 9 is what? 9. So if you add 9 to this number, you have your answer. I'll repeat this. थोड़ा सा ऊपर नीचे हिल डुल गया था. I'll repeat this. So what we are doing here, ये अपन क्या कर रहे हैं? First we are taking this number, we are dividing this with 9. Yes, so what happens? This becomes 51,005. Yes, next we are checking for divisibility by 3. So divisibility by 3 में क्या पता चल रहा है? That 5 plus 1 plus 5 is 11. Digital sum 11 आ रहा है. So I should add something to this 11 to make this a number divisible by 3. है ना? क्या ऐड कर रहा हूं मैं? 1 ऐड कर रहा हूं. So by adding 1, this becomes divisible by 3. But मेरे को इसको divisible by 3 नहीं कराना, divisible by 27 कराना. So the process that I did here, I divided by 9. वो 9 को आप वापस multiply कर लो here. So 1 9 times is what? 9. So if I add 9 to this number, my number will be divisible by 27. कौन सा आपको simple लगा? This is in fact faster than calculator. Yes, this is in fact faster than calculator. क्योंकि calculator में आप क्या करोगे? पहले you will add 0, then you will add 3, then you will add 9 and then check, है ना? Process थोड़ा सा लंबा है. So this is better. ठीक है? बहुत बढ़िया. Very good, Sandeep. Very good. If you did not use a calculator, बहुत बढ़िया. Done. Shall we go to the next question? Next question, before we move on to that, if you are preparing for other management test 2021, you can also opt for the iconic subscription. उत्कर्ष जो आप बोल रहे थे मेरे को लेना है. If you are wondering कि मेरे को लेना है तो what you can do, you can take iconic subscription. क्योंकि इसमें प्लस के तो सारे बेनिफिट्स है ही है, बट इसके साथ साथ आपको 1-on-1 लाइव सेशंस मिलेंगे आपके मेंटर्स के साथ. And this will be extremely helpful, especially when you are preparing for other management entrance test. क्योंकि फिर आपको वो क्वेश्चन होता है कि should I give this test? इसमें क्या स्कोर चाहिए अच्छा कॉलेज के लिए? क्या ये अच्छा कॉलेज है? Yes, क्या ये अच्छा प्रोग्राम है? All of those questions will get answered. इसके साथ साथ आपका जो भी
WAT में जो भी डाउट्स है, जो भी गाइडेंसेस चाहिए आपको, GDPI में जो भी गाइडेंसेस चाहिए, मॉक्स चाहिए, सब आपको यहाँ पे मिलेंगे. Yes, so you can also go for the 6-month subscription, iconic subscription. Do not forget to use my code Surana Life. चलिए आगे बढ़े. Shall we move on to the next question now? Here is our next question. Let's see how many of you all can answer this. Let's go. हाँ भी नहीं, टीटा हुआ तो सेकेंड वाला, अगर टीटा नहीं है, आंसर चॉइसेस है तो फिर रिवर्स इंजीनियरिंग. हाँ आदित्य, वो 3 का डिविजिबिलिटी आपने किया ना, और वो 45,945 का नहीं था, सॉरी 450,045 का नहीं था, वो आपने 51,005 पे किया था. तो दोनों फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट्स इट. अच्छा, बिफोर यू गाइस स्टार्ट सॉल्विंग दिस गाइस, ये अपन आदत छोड़ रहे हैं बार बार. Cheers. After completing every question, let's celebrate. Let's cheers. Cheers, everyone. हाँ जी guys, 1 minute is done. बफर हो रहा है क्या? नहीं तो नहीं हो रहा है ना विनीत. अर्पित सेज ए, अदर्स. क्वेश्चन का जो वर्डिंग है, लैंग्वेज है, उसको प्लीज ध्यान से पढ़ना. यस, टोटल, इसलिए मैंने अलग अलग कलर्स यूज किए कीवर्ड्स पे. टोटल अलग है, सम ऑफ द डिजिट्स अलग है, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स अलग है, बीच में क्या वर्ड है, एंड यूज्ड है. इनको प्लीज ध्यान से पढ़ के फिर करना, ठीक है. नवनीत ऑल्सो सेज 10. ओके, Shubh says 10, Ray says 10, very good. So if you are having a difficulty in understanding the question, let me give you an example. Let's take a random number. Let's take a number like 25, ठीक है. तो अब ये क्या बोल रहे हैं? They're saying the total of sum of the digits. Sum of the digits क्या? 2 plus 5. और प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स क्या? 2 into 5. इनका जो सम है, टोटल है, दिस शुड बी इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ. यस, इज इट इक्वल दो? इज 7 plus 10 इक्वल टू 25? एटलीस्ट नॉट इन द डेसिमल सिस्टम. डेसिमल सिस्टम है तो डेफिनेटली नहीं है. यस, सो दिस इज नॉट अ लकी नंबर, ठीक है. 25 इज नॉट अ लकी नंबर, एटलीस्ट नॉट फॉर अस. किसी और के लिए होगा, अपने लिए तो नहीं है. तो व्हाट दे आर आस्किंग इज, ऐसे कितने नंबर्स है जहां पे ये सेटिस्फाई करेगा? हाउ मेनी सच नंबर्स एग्जिस्ट जहां पे ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विथ इक्वेशंस टू बिगिन विथ, फिर अपन ट्रायल एंड एरर करेंगे, ठीक है. सो लेट्स कॉल द 2 digit नंबर एज x y. तो x जो है 10th प्लेस पे है, y 1st प्लेस पे है ना. 10th प्लेस 1st प्लेस, दैट मीन्स द नंबर कैन बी रिटन एज 10x plus y. ये क्या बोल रहे हैं कि सम ऑफ द डिजिट्स x plus y प्लस प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स x into y शुड बी इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ. बराबर. Yeah, so what do we get here? X plus y plus xy should be equal to 10x plus y. X plus y plus xy should be equal to 10x plus y. Y अपना cancel हो गया. Here we have x plus xy equal to 10x. x को common ले लो, cancel कर दो. You will get what? 1 plus y is equal to 10. y आपका 9 है. This is a constant value. फिक्स्ड वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू. मतलब नंबर्स एंडिंग विथ 9 पे अगर आप
ट्रायल एंड एरर करोगे यू विल गेट इट, क्योंकि अगर ये आप 9 कहीं पर भी प्लग इन करोगे x का कोई वैल्यू नहीं आएगा, बिकॉज x गेट्स कैंसल्ड अल्टीमेटली, है ना। तो देयर इज नो पॉइंट इन प्लगिंग इन y इक्वल टू 9, यहां पे क्या करोगे, ट्रायल एंड एरर। So they want numbers from what, 10 to 100. Start with the first number 19. Check करो, 1 plus 9 10 plus 1 into 9 9, correct है? Yes. Try with 29. 2 plus 9 11 plus 2 into 9 18. 29 सही है। ऐसे अगर आप take a random number like 79, yes, what will happen? Same. 7 plus 9 is 16. 7 into 9 is 63. 63 plus 16 is 79. लास्ट नंबर भी चेक कर लो जस्ट फॉर सेफ्टी, 99। 99 का क्या है, 18 प्लस 81, इट इज इक्वल टू 99। मतलब सारे ऑल 2 डिजिट नंबर्स एंडिंग विथ 9, ऑल 2 डिजिट नंबर्स एंडिंग विथ 9 सैटिस्फाइड। तो कितने नंबर्स है ये, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक, 19 29 ऑल द वे टिल 99, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, 9 नंबर्स। यस, सो द क्वेश्चन इज स्टिल, अगर मेरे को एक आंसर चॉइस 9 भी रख लेना चाहिए था, नहीं, इंस्टेड ऑफ ऑल दिस इफ आई हैड एन आंसर चॉइस 9 मे बी सम पीपल वुड हैव फॉलन फॉर इट। क्या बोलते हो, अगर मैं कोई एक आंसर चॉइस 9 रखता तो क्या आप गिरते? सर्वे ले रहा हूं ताकि अगली बार ट्रैप सेट करूं तो ऐसे करूंगा। सो 10 से लेके 100 तक कितना नंबर्स है, फ्रॉम 10 टू 100 हाउ मेनी नंबर्स डू वी हैव? 10 से लेके 100 तक अगर आप बोल रहे हो 90 नंबर्स है तो गलत है, प्लीज 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 गाइस। फ्रॉम 10 टू 100 90 नंबर्स नहीं है, 91 नंबर्स है, प्लीज कीप दैट इन माइंड, ठीक है? ओके क्योंकि 10 को भी इंक्लूड करना है, फ्रॉम बोला है, नॉट बिटवीन, फ्रॉम बोला है। सो देयर आर 91 नंबर्स। हाउ डू यू डू दिस? ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फ्रॉम A to L, the best way to do it is this: do L minus A and add 1 to it. yes, तो यहां पे लास्ट नंबर क्या है, 100, फर्स्ट नंबर क्या है 10 एंड ऐड 1 टू इट। सो 100 माइनस 10 90, 90 प्लस 1 91, ठीक है? ये अगर आपको नहीं पता था तो ये कुछ नया इंफॉर्मेशन है, और अगर पता था तो ये रिवीजन हो गया। हाँ करेक्ट, 10 इज ऑल्सो इंक्लूडेड, करेक्ट संदीप। सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट दैट 9 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 91? इट इज अप्रॉक्सीमेटली 10%, not precisely 10, approximately 10, ठीक है? Got it everyone? Superb guys, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। ये तो बहुत सिंपल है यार, करो, काफी सिंपल, वेरी सिंपल। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू ऑल कैन डू इट। ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको रिस्क नहीं लेना है, इफ यू डोंट वांट टू रिस्क कि सर मेरे को ज्यादा दिमाग विमाग नहीं लगाना है, मेरे को फट से आंसर चाहिए, पूरा सब कुछ खोल डालो, है ना, सब कुछ जो है खोल डालो। एक बार पूरा खोल डालोगे तो आपको प्राइम नंबर्स में मिल जाएगा। वंस यू प्राइम फैक्टराइज ईच ऑफ दिस, फिर तो भाई चांदी चांदी, ठीक है? क्योंकि एनी विच वेज फॉर यू टू फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स, आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए आप वैसे भी उस नंबर को प्राइम फैक्टराइज करोगे ही। यस, तो बाद में करने से अच्छा पहले ही कर लो, है ना? बट यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल, बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा आपको। छोटे छोटे इंट्रिंसिक कैलकुलेशंस बहुत है इधर, ठीक है?
number of factors for any given number f is basically what, p1 to the power a. अगर किसी भी नंबर को आप, if any number you can write it as p1 to the power a into p2 to the power b into p3 to the power c and so on, where p1 p2 p3 क्या है, distinct prime numbers. ये जरूरी है कि वो नंबर्स डिस्टिंक्ट हो, है ना, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स है, देन नंबर ऑफ फैक्टर्स कैन बी रिटन एज व्हाट, a plus 1 into b plus 1 into c plus 1 so on, है ना. क्विक रिविजन, पीपल हु डू नॉट नो दिस या पीपल जो ये भूल गए. ऑलराइट, आदित्य सेज a 36, बहुत बढ़िया आदित्य. हाउ अबाउट द अदर्स? कृष्णा ऑल्सो सेज ए, सुपर्ब. कृष्णा भी ए बोल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया. श्रेयांश भी ए बोल रहे हैं, सुपर्ब. तो टाइम तो खत्म हो गया, 3 मिनट नहीं लगना चाहिए गाइस. ये क्वेश्चन पे 3 मिनट नहीं लगना चाहिए, आप कितना भी केयरफुल रहो. यस, ट्राई, यू शुड हैव ट्राइड डूइंग दिस इन 90 सेकेंड्स, 1.5 मिनट मैक्सिमम, इवन इफ यू आर एक्सट्रीमली केयरफुल. तो यहां पे क्या करेंगे, ब्रेक डाउन ईच ऑफ देम इनटू प्राइम नंबर्स. यस, 216 इज बेसिकली 6 क्यूब, तो ये क्या है, 6 क्यूब होल पावर 3/5, विच इज व्हाट, 6 टू द पावर 9/5. 6 पावर 9/5 को आप 2 पावर 9/5 इंटू 3 पावर 9/5 लिख सकते हैं, है ना. एक टर्म खत्म. लुक एट द अदर टर्म, 300. Yes, what is 300 guys? 300 is 60 into 5, which is 6 into 12 into 25, correct? 300 को अपन 12 into 25 लिख सकते हैं. क्या हो गया भाई? गाइज ये हो रहा है क्या, बफर हो रहा है क्या? नहीं ना. सो 12 into 25 लिख सकते हो इसको. दिस इज व्हाट, 12 into 25 to the power 1/5. 12 क्या है, व्हाट इज 12? 4 into 3. सो ये हो गया 4 to the power 1/5 into 3 to the power 1/5 इंटू 25 टू द पावर 1/5. 4 क्या है, 2 स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 स्क्वायर होल पावर 1/5 इज 2 टू द पावर 2/5, 3 टू द पावर 1/5, 25 इज 5 स्क्वायर, सो 5 टू द पावर 2/5. अब क्या बचा आखिरी में, 25,000, सॉरी 2,500. You have to be careful when you break it down into primes. Yes, 2,500 can be written as what, 50 into 50. तो दोनों में से आपने 2 निकाल लिया, 4 अलग से, 625 अलग से. यस, 4 into 625. तो ये क्या हो जाएगा, 4 to the power 2/5 into 625 to the power 2/5. This will become what, 2 to the power 4/5 into 625 is 5 power 4. So this will become 5 power 8/5. अब क्या करो, ग्रुप कर लो इन्हें, ग्रुप देम, 2 2 2. दिस विल बिकम व्हाट, 2 to the power 9/5, 11/5, 15/5 इंटू 3 को कर लो, 9/5, 10/5. दिस इज 3 to the power 10/5 इंटू 5 का क्या है, 2/5, 8/5. सो दिस इज ऑल्सो 5 to the power 10/5. अपना क्या मिल गया, सब कुछ प्राइम फैक्टर्स में मिल गया. अपना नंबर n क्या है, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर. समझ गए? अपन ने जितना भी मेहनत किया, पूरा मेहनत जो अभी डाला, ओनली टू गेट दिस.
yes, all our hard work was only to get this. एक बार ये मिल गया तो अब अपन easily factors ढूंढ सकते हैं ना. How do you find factors? Number of factors will be what? Distinct prime numbers है. इनके powers को लो, 1 1 add कर लो. 3 plus 1 into 2 plus 1 into 2 plus 1, which is what? 4 into 3 into 3, that is 36. So there are, this number has 36 factors. मेहनत लगा डेफिनेटली लगा, है ना. मेहनत लगा, टाइम लगा, बट देन वी डिड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन. कहीं पर भी अपन घुस के ऐसा सर फोड़े जैसा नहीं किया. अगर ये इसको आप कंप्रेस करते हैं इंस्टेड ऑफ एक्सपैंडिंग, इफ यू वुड हैव ट्राइड एंड कंप्रेस्ड इट, आप अटक जाते फालतू में. यस, सो आई होप दैट पार्ट इज क्लियर. ठीक है ना. चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बिफोर दैट, ये अपना 10 डेज का काउंटडाउन सीरीज चल रहा है ऑन स्पेशल एंड ऑन यूट्यूब. यस, स्पेशली ऑन स्पेशल. तो आज 10 बजे है. टुडे 10 PM आफ्टर वी फिनिश विद दिस क्लास, 10 PM टुडे. आज वी आर डूइंग अ क्लास ऑन ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन. कहाँ पे? स्पेशल पे. ऐसे ही करेंगे सेम. We will take up some interesting questions and we'll solve it. ठीक है. तो टैंक ये सेशन है 10 PM का. ये वाला 8 बजे चालू हो गया था आज दोपहर को, तो मैंने बताया था आपको. ठीक है, चलिए लेट्स ट्राई दिस वन नाउ. बच्चों वाला क्वेश्चन है, जल्दी कर लो. इस क्वेश्चन में कोई लोड नहीं है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, क्विक. How many questions were answered correctly is the question. सिंपल लीनियर इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है गाइस. क्या हो गया भाई? प्रतीक सेज डी, रे सेज डी. वेरी गुड रे. प्रतीक वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्रिंस. एसएस रॉन्ग प्लेस बड़ी, रॉन्ग प्लेस. आई डोंट डू प्रेडिक्शंस. मैं वो वाला ज्योतिष नहीं है प्रेडिक्शन करने वाला. प्रियांश सेज सी, लेखना सेज डी, विभा सेज डी. ओके, संदीप says D. Superb. Isha and Ritik also say D. Very good. Superb. How many of you did this? Number of correct questions plus number of wrong questions is equal to 100. 2 points for every correct question. So 2 points for every correct question plus 1 point for 2 wrong answers. That means half a point subtracted for every wrong answer. So this should become what? Negative. क्योंकि negative marking है, reduce हो रहा है. This is equal to 120. How many people took these two equations, solved and got the answer? Say yes. कितने लोगों ने ये किया? 2 लीनियर इक्वेशन बनाया 2 वेरिएबल्स यूज करके एंड देन यू गॉट द आंसर. हाउ मेनी? किसी ने भी नहीं किया ये? अरे भाई सब तेज हो रहे हैं. दिस विल डेफिनेटली वर्क. ये आपको आंसर तो देगा ही देगा, राइट? दिस विल डेफिनेटली गिव यू एन आंसर, बट व्हाट यू शुड बी वरीड अबाउट is will it give me an answer in a time efficient manner?
है ना। और क्या मैं यहाँ पे जो यूज किया गया कॉन्सेप्ट है उसको रख के मैं शो ऑफ कर सकता है क्या बाहर? दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन, है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पे? विल यूज एलिगेशंस। कैन वी यूज एलिगेशंस गाइस यहाँ पे? क्या बोलते हो? तो क्या बोल रहे हैं कि पर क्वेश्चन फॉर करेक्ट यू गेट 2, पर क्वेश्चन यू लूज हाफ, पर क्वेश्चन कितना मिला? 120 मार्क्स फॉर 100 क्वेश्चन। सो कैन आई से पर क्वेश्चन हमें 1.2 मार्क्स मिला? यस और नो? पर क्वेश्चन हमें 1.2 मार्क्स मिला। यस, एलिगेट कर लो अभी, बस खत्म। एलिगेट कर लो। 1.2 minus 0.5 is 0.7. 2 plus 1.2 is 3.2. Correct? Sorry, 2 minus 1.2 is ये 1.2 minus of minus 0.5. Sorry, 1.7, and this will become 0.8. Yes. So we basically want the sum to be 100. There should be total 100 questions. तो कैसे हो जाएगा? ये 32 और ये 68. So 68 correct questions and 32 wrong ones. हमें क्या चाहिए? करेक्ट वाले चाहिए 68. Yes, this is one method that you can use to show off, है ना, एलिगेशन करके कि सर इजी जगह पे भी एलिगेशन यूज करे वो। चलिए, अनदर मेथड विल बी व्हाट? टू गेट द एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स ले लो, सेम एलिगेशन बट विथ एक्सट्रीम्स। यस, अगर पूरे 100 क्वेश्चंस, इफ ऑल 100 क्वेश्चंस वेर करेक्ट, आई वुड हैव गॉटन 200. इफ ऑल 100 क्वेश्चंस वेर करेक्ट, आई वुड हैव गॉटन 200, है ना। बट क्या हुआ? ओनली आई गॉट ओनली 120 पॉइंट्स। मतलब ये जो 80 पॉइंट्स है, ये जो 80 पॉइंट्स लूज हुआ वो किसके कारण हुआ? I lost these 80 points because of the half mark that I am losing. Correct? Yes, ये जो 80 points मेरा lose हुआ वो किसके कारण हुआ? जो half mark मैं खो रहा हूं। तो I am losing 2 marks and I am losing half marks. So I am losing how much? 2.5 marks basically. So 80 divided by 2.5 is how much? 32. आया समझ में? करेक्ट संदीप, ये सिंगल स्टेप है, एलिगेशन भी करने की जरूरत नहीं है, सिंगल स्टेप सोल्यूशन। 200 आएगा इफ ऑल 100 क्वेश्चंस आर करेक्ट। 120 इज द एक्चुअल स्कोर। तो जो डिफरेंस है वो कितना? 80 का है। नाउ पर क्वेश्चन कितना डिफरेंस आ रहा है? 2.5 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है। यस, +2 माइनस ऑफ माइनस 0.5, तो कितना डिफरेंस है? 2.5 का डिफरेंस है। तो दिस 80 विल बी स्प्लिट अमंग 2.5 कितना? 32। डन। विनीत कौन सा? ये वाला, दिस वन। ये 0.5 कैसे आया? सो व्हाट दे सेइंग इज फॉर 2 रॉन्ग क्वेश्चंस वी लूज 1 मार्क। So for each wrong question we will lose 1/2 marks. ठीक है। अर्पित, अपन गैप देख रहे, डिफरेंस देख रहे, डिफरेंस पर क्वेश्चन का स्कोर, डिफरेंस पर क्वेश्चन में 2 मिलता है, पर क्वेश्चन में 0.5 नेगेटिव होता है। सो 2 से लेके यहां पे आपका 0.5 है, यहां पे 2 है, -0.5, यहां पे 2, तो इन दोनों के बीच का कितना गैप है? 2.5 का गैप है। दैट्स दैट 2.5। ठीक है। ओके प्रिंस, नो इश्यूज। यस शुभम, वो भी सही है। डन। यू कैन डायरेक्टली वर्क थ्रू दैट इटसेल्फ, वहीं पे आप वर्कआउट कर सकते हो कि अगर पूरा 50 क्वेश्चंस करेक्ट आता है, 50 क्वेश्चंस करेक्ट आने पे मेरे को 100 ही मिल रहा है, 45 क्वेश्चंस करेक्ट आने पे मेरे को 100 ही मिल रहा है, 60 करेक्ट आने पे मेरे को 120 मिल रहा है, बट बाकी 40 क्वेश्चंस गलत है, मतलब 20 मार्क्स कम होगा।
तो बेसिकली यहाँ पे मेरे को 100 पॉइंट से आएगा. ओनली पॉसिबिलिटी 68. फास्टेस्ट मेथड इन फैक्ट. बहुत बढ़िया शुभम. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स कॉल दिस द लास्ट क्वेश्चन, शैल वी. आखिरी क्वेश्चन करते हैं. चलो देखते हैं कैसे जाता है. करिए गाइस जल्दी. करेक्ट संदीप. यस. हाँ जी गाइस. How many people looked at this question and said to yourself, बेटा ये हमसे ना हो पाएगा? How many people saw this and like नहीं नहीं ये एकदम कोर लेवल तक एकदम चढ़ चुका है ये क्वेश्चन, इसको जाने देते हैं. अच्छा गाइस एक सेकेंड रुको. कोई वीडियो पे लाइक नहीं कर रहा क्या? भूल गए क्या? मैं भी बताना भूल गया गाइस. वीडियो पे लाइक कर लो भाई. प्लीज लाइक मी, प्लीज लाइक मी, प्लीज लाइक मी. बोलने का मन कर रहा है कि भाई इतना डेस्परेट. स्कूल टाइम पे मैं अपनी पहली गर्लफ्रेंड के साथ भी नहीं था. लाइफ में इतना वैलिडेशन चाहिए होता है हमें. प्लीज यार वीडियो को लाइक कर लो. टॉपिक ही नहीं किया, क्या बोल रहे हो विनीत? ये क्या बैड हैबिट है? आंसर क्या है? 0. ओके, विनीत से 0, चेतन से 1. ओके, अदर्स? उल्लास says 2. इसको अगर आप, ये अलजिब्रा का क्वेश्चन है, आई अग्री, है ना? आप बोलोगे कि क्या सर अलजिब्रा का क्वेश्चन भी अलजिब्रा में नहीं करे, अरिथमेटिक का क्वेश्चन भी अलजिब्रा में नहीं करे, तो अलजिब्रा को क्या करे? अलजिब्रा का जो है अभी के लिए कोपचे में बैठाओ. बेस्ट वे टू आंसर दिस क्वेश्चन, इफ यू डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन लॉन्ग इक्वेशंस, लॉन्ग सॉल्विंग लीडिंग टू errors, best way to solve this would be assumption. ठीक है, बट प्लीज कीप इन माइंड यू हैव टू अस्यूम द रूट्स. अल्फा और बीटा का वैल्यू आपको ऐसे अस्यूम करना है सच दैट अल्फा एंड बीटा का वैल्यू आपको ऐसे अस्यूम करना है सच दैट सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रेसिप्रोकल्स. रेसिप्रोकल स्क्वायर का सम. समझ में आ रहा है? तो व्हाट वुड बी द बेस्ट असम्पशन यहां पे? ऐसे में अपन क्या बेस्ट असम्पशन कर सकते हैं? 1 and 1 जमेगा, 1 और 1 जमेगा क्या? अल्फा एंड बीटा इक्वल टू 1. विल इट वर्क? लेट्स चेक. अल्फा प्लस बीटा 1 plus 1 will be equal to 1 by 1 whole square is 1, 1 by 1 whole square is 1. satisfies? बस खत्म खेल. अब हमें कुछ नहीं करना है, इसका इक्वेशन बनाओ ताकि आप ए बी और सी निकाल सको.
या इवन बेटर, a क्या है 1, यस b क्या है, b इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ द सम ऑफ द रूट्स, यस तो b का वैल्यू क्या है -2 और c क्या है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विच इज 1 into 1 1 itself। तो हमें a b और c मिल गया। अब बस ये पता करो कि अपना जो अननोन है वो क्या है। दे आर आस्किंग फॉर द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर बाई ac प्लस bc बाई a स्क्वायर, इसका वैल्यू हमें चाहिए है ना। तो b स्क्वायर क्या है -2 स्क्वायर 4 बाई a इंटू सी इज 1 प्लस b इंटू सी विच इज -2 into 1 divided by a square which is 1. So what is 4 minus 2? Drop pen. Yes, mic drop, जैसे मैंने पेन ड्रॉप कर दिया। बोलो ये इजी लग रहा है? Are you finding this simple or are you going to go for this method? मतलब ये सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जो एकदम मतलब ओवर डेयरिंग हो, है ना, इसको रख के सॉल्व करने वाले। अल्फा प्लस बीटा is equal to 1 by alpha square plus 1 by beta square. So you will get alpha plus beta to be alpha square plus beta square by alpha square into beta square. फिर इसको आप इसमें प्लग इन करोगे, b square will be what? b square is basically this, b is this alpha square plus beta square by alpha beta square। वहां पे आप ये प्लग इन करोगे, so what will happen? You can either call this minus b will be equal to alpha square plus beta square by c square। yes, तो माइनस b की जगह पे आप ये प्लग इन करोगे या c स्क्वायर की जगह पे आप ये प्लग इन कर, कितना हेडेक है देखो। yes, ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर गाइस, एल्जिब्रा से जितना दूर रहोगे आपके लिए अच्छा। assumption is one of the ways of getting rid of algebra. Another method is reverse engineering, but reverse engineering इधर नहीं काम आएगा। some questions reverse engineering will work smooth as butter, ठीक है। एग्जैक्टली टाइम तो खाएगा, जो खाएगा आपका पूरा मोटिवेशन खा जाएगा भाई, ठीक है। करेक्ट है आयुष, है ना। तो ये सब मत करो, टाइम खा जाएगा, मोटिवेशन खा जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, कंप्यूटर तोड़ के निकल लोगे टेस्ट सेंटर से। सो डोंट। चलो लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन एंड देन रैप दिस अप, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं फिर उसको रैप करते हैं, ठीक है। चलिए गाइस जल्दी से करिए, आखिरी क्वेश्चन। अर्पित इनइक्वालिटी का कोई क्वेश्चन है क्या? सबसे पहले लेट मी चेक, यहाँ पे कोई क्वेश्चन है क्या इनइक्वालिटी का? स्पेशल पे आ जाओ आज 10 बजे, अभी आधा घंटा है 10 बजने में, उधर आ जाओ, मैं आपको बताता है। आई विल ब्रिंग अ क्वेश्चन विद मी फ्रॉम इनइक्वालिटीज एंड आई विल शो यू हाउ आरई विल वर्क, ठीक है। 10 PM स्पेशल पे आ जाना। लिंक जो है मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर रखा आयुष, ठीक है। अर्पित, ठीक है, आ जाओ भाई। ये एक्चुअली बहुत सिंपल है, दिस इज ट्रूली वेरी सिंपल प्रोवाइडेड यू हैव द bandwidth of doing all this. Okay. Ray says A. Lekhna says A. Ray has changed it to B. Chetan says B. Okay, so we have A, we have B. How about others? Similarities of triangles क्या? Okay, Vineet. Geometry and mensuration, Mayank.
Doing some practice questions on geometry and mensuration. Arpit and Akshita. Arpit is saying A, Vibha is saying A, Akshita is saying sorry, Akshita A बोल रहे हैं, अर्पित और विभा B बोल रहे हैं, ठीक है. A and B में please don't get confused. A और B में please don't get confused with regards to this degree. यहाँ पे पावर -1 है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है. सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट विच आंसर चॉइस यू सेलेक्टिंग. जल्दबाजी में मत सेलेक्ट करना. करेक्ट लिखना. A is actually a trap, very badly laid trap, but a trap whatsoever. ट्रैप होता है, ट्रैप अच्छा बुरा नहीं होता. ओके चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं. नाउ वी कैन नॉर्मली डू इट, बट लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट टुडे. ओके क्या बोल रहे हैं? A is equal to log 3 base 30 है ना. सो कैन आई से that 1 by A will be equal to log 30 base 3. रेसिप्रोकल ना, चेंजिंग द बेस और आर्ग्यूमेंट चेंज कर रहे हैं. 1 by A is log 30 base 3. yes. so what does this mean? This means that 3 to the power 1 by A. ये जस्ट ट्राई कर रहे हैं. लेट्स सी इफ दिस वर्क्स. अगर ये वर्क नहीं करेगा तो ठीक है. 3 to the power 1 by A is 30. okay. and B का करते हो अभी. they're saying B is equal to log 5 base 30. so we can write 1 by B will be equal to log 30 base 5. so what does this mean? This basically means that 5 to the power 1 by B is equal to 30. Now what are they asking? They are asking what will be log 30 base 8. So let's call log 30 base 8. ये मैं try कर रहा हूँ. Let's see if this works. Okay, let's call it x. yeah. so what will this become? This will become 8 to the power x is 30. we want the value of x. फंस गए. नहीं जम रहा ना. is there anything we can do? 5 3 1 by A 1 by B गलत है. ठीक है फिर चलो जाने दो. लेट्स डू दिस इन द ट्रेडिशनल मेथड इटसेल्फ. डिडंट वर्क आउट. आई वाज डूइंग समथिंग इन माय माइंड. आंसर चॉइस से भी कर सकते हैं या if log 30 base 8 is equal to this. चलो नॉर्मली करते हैं. लेट्स डू इट नॉर्मली इटसेल्फ. वो भी सही है. चलो ठीक है नॉर्मली करते हैं. इफ वी डू दिस नॉर्मली व्हाट विल वी गेट? A है B है. इफ आई ऐड A एंड B, A प्लस B विल बी इक्वल टू log 15 base 30 है ना. विल गेट log 15 base 30. 3 into 5. so A plus B is log 15 base 30, which can also be written as log 30 by 2 base 30. Make sense? log 30 by 2 base 30 जिसको अपन कैसे लिख सकते हैं? log 30 base 30 minus log 2 base 30.
यस, ये सारे a प्लस बी के वैल्यूज है. सो log 30 बेस 30 इज 1 माइनस log 2 बेस 30. दिस इज a प्लस बी का वैल्यू. तो कैन बी से log 2 बेस 30 is basically 1 minus a plus b. yes, तो हमें क्या चाहिए? we want log 30 base 8 का वैल्यू चाहिए, which is going to be reciprocal of log 8 base 30, which is nothing but 1 by 3 times log 2 base 30. this is nothing but 1 by, नीचे करता हूँ मैं, शायद ब्लॉक कर रहा हूँ. so this here 1 by 3 into log 2 base 30 is what? 1 minus a plus b. इसको अंदर ले लेते हैं. This is it. So log 30 base 8 is basically 3 into 1 minus a minus b whole power minus 1. रेसिप्रोकल है इसलिए. डायरेक्टली भी आगे ज़्यादा लोड नहीं लगा. yes. बट अगर वैसे आ जाता, वैल्यूज रख के आ जाता, तो क्या ही बात थी, है ना? चलिए गाइस, सुपर. सो विल रैप विद दिस. इसको खत्म करते हैं. आई विल सी यू एट 10 PM ऑन स्पेशल. इफ यू हैवंट हिट लाइक ऑन दिस वीडियो गाइस, फटाफट से लाइक कर दो वीडियो पे. देयर आर सम अदर क्वेश्चंस आल्सो, बट वी विल डू देम इन ड्यू टाइम. ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके पास कोई भी डाउट्स है विथ रिगार्ड्स टू एकेडमिक्स, यू कैन यूज द आस्क अ डाउट फीचर. इट्स अ फ्री फीचर. यू कैन यूज, anybody can use this. it's available on the app. yes. apart from that, अगर कोई और डाउट्स है, कोई और हर्डल्स है, हिंड्रेंसेस है आपके प्रिपरेशन में, कैट में, you can drop me a message on telegram. I will definitely give my best to answer. मैं थोड़ा सा ढीला हूँ रेस्पॉन्ड करने में, but I will definitely answer. ठीक है? yes, ये सब क्वेश्चंस अपन फिर बाद में करेंगे. ठीक है? एंड डोंट फॉरगेट गाइस, टुमारो ब्लॉक योर टाइम. कल का टाइम जो है 4 बजे से 4:40 तक ब्लॉक कर दीजिए. आई एम गिविंग वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस. यस, दिस इज अवेलेबल ऑन द ऐप और ऑन द वेबसाइट. अगर आप इफ यू आर यूजिंग अ कंप्यूटर टू डू दिस, आई विल शेयर द लिंक ऑन टेलीग्राम. ठीक है? टुमारो 4 PM to 4:40 PM. ठीक है? नहीं आयुष, इट्स ऑन स्पेशल. आई विल शेयर द लिंक नाउ. शेयर मैंने सुबह किया था लिंक, बट अभी वापस से कर लूंगा. ठीक है? हाँ संदीप, प्लस में आइकॉनिक में आप यू कैन टॉक टू मी डायरेक्टली. ऑडियो टू ऑडियो ट्राई कर सकते हो. चलिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द सेशन. आई विल सी यू ऑल इन व्हाट 20 minutes. 20 मिनट में मिलते हैं ऑन स्पेशल. ठीक है? बाय 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 गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट. आई नो आई एम सेइंग दिस आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट कीप लर्निंग. लेट्स क्रैक इट.